Good morning, students. Students, today I would be giving intro lecture on the concept of inverse trigonometry to all of you. Although before the lockdown started in the school, I had discussed this chapter on the videos, but today, since it is long time back, I'm again going through the concept of inverse trigonometry. So, starting with the concept of inverse trigonometry, I would first like to write an equation in front of you. For suppose you have an equation sine theta is equal to x. This is an equation in front of you. Sine theta is equal to x. So, out here in inverse trigonometry, and we have seen these equations many a times in trigonometry, means we know that sine 30 degree is equals to 1 by 2. This is an equation of the format which I have written on the board. So this is the main equation, this is the equation which is an example of it. So if I apply the concept of inverse trigonometry into it, means if sine theta is equals to x, then the concept of inverse trigonometry says that theta will be equal to sine inverse x. Theta will be equal to sine inverse x, that is sine theta is equal to x, then theta is equals to sine inverse x. Out here you see the function of inverse trigonometry coming into the picture. Similarly, if sine theta is equal to 1 by 2, we can say that 30 degree is equals to sine inverse 1 by 2. Sine inverse 1 by 2 means this is the question. Sine 30 degree is equals to 1 by 2, then 30 degree is equals to sine inverse 1 by 2. This is the concept, introductory concept of how the inverse function works. Means once this function moves to the other side, once this sine function moves to the other side with x, it is written like this, not like this. This is a doubt which many students do have, that sine theta is equals to x, then theta is equals to x upon sine. This concept is wrong. This concept is wrong. Sine theta is equals to x, then theta is equals to x upon sine. This is wrong. While if sine theta is equals to x, theta will be equals to sine inverse x. We don't write x upon sine, we write it as sine inverse x. And this is the function of these are known as inverse trigonometric functions of trigonometry in mathematics in general. That is, if the sine function migrates from one side to the other side, it does not enters the denominator side, rather than it is written in this format. Okay, so this is the basic information on inverse trigonometric function. What is an inverse trigonometric function? Inverse trigonometric function is nothing but migration of the trigonometric function from one side to the other side in this manner. This is the migration of a trigonometric function onto the other side. This is the manner in which it is done. In general, students, we have 6 trigonometric functions. You know that sine theta is equals to x, cos theta is equals to x, tan theta is equal to x. In general, there are 6 trigonometric functions like this, and each of them can be rewritten in the format of theta is equals to cos inverse x, theta is equals to cos inverse x,
एज यू कैन सी द फंक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे फंक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी वैल्यू पे अप्लाई करते हो तो हमेशा आपको जो आंसर मिलता है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ थीटा, एंगल के टर्म्स में आंसर निकल कर आता है। मतलब अगर आप किसी वैल्यू पर, x एक वैल्यू है, अगर आप किसी वैल्यू पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, कोई भी अप्लाई कर रहे हो, कॉस कर रहे हो, टैन कर रहे हो, कोई भी एक आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो उसका जो आंसर निकल कर आता है वो एक एंगल रहता है। और वो एंगल भी आप डिग्रीज में नहीं लिखते, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन का जो आंसर आप लिखते हो, और अगर वो एक एंगल है, जैसे कि यहाँ पे थीटा एक एंगल है, तो दैट एंगल शुड बी रिटन इन रेडियंस। ये आंसर हमेशा रेडियंस, पाई के टर्म्स में दिखना चाहिए। दिस इज़ द करेक्ट मेथोडोलॉजी टू राइट एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर हमेशा पाई यानी रेडियंस के टर्म्स में ही लिखना पड़ता है। आप डिग्रीज में अगर आंसर्स उसका छोड़कर आएंगे तो यू आर लाइबल टू बी डिडक्टेड फॉर द मार्क्स इन दैट केस। ठीक है, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर्स हमेशा रेडियंस में निकल कर आते हैं। और मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्स फंक्शन होते हैं, क्योंकि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, जैसे साइन, कॉस और टैन, ये 3 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी तरीके से और 3 टाइप के होते हैं सेक, कोसेक, कॉट। उन पे भी आप यही कंसेप्ट से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हो। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू सेक इन्वर्स एक्स, थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक इन्वर्स एक्स, थीटा इज इक्वल्स टू कॉट इन्वर्स एक्स, ऐसे उसमें भी आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन लगा सकते हो। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली वो ये है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर्स हमेशा रेडियंस में निकलते हैं। मतलब अगर आप किसी वैल्यू पे, यानी एक्स वैल्यू, उस पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करा, आंसर इज इन रेडियस। कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये मेरा एक फॉर्मेट था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये बात ध्यान रखनी है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हो तो थीटा का आंसर हमेशा रेडियंस में आता है। लेकिन ये नहीं कि रेडियंस में आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो। एक हम कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ते हैं या हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ देखी हैं। अगर आपको याद हो, जैसे अगर आपके पास साइन फंक्शन रहता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहती है दैट इज़ +1 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन इज -1। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन फंक्शन। मतलब ये जो x है यहाँ पे, ये x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, या यही x की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। मतलब आप ये x में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो कि +1 और -1 के बीच में आती है। उन सारी वैल्यूज़ के लिए ही ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये वाला साइन इन्वर्स वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड है। मतलब +1 और -1 इसकी ये हम डोमेन कहते हैं, या इसको हम अपना वैल्यूज़ कहते हैं जिनको हम इनपुट कर सकते हैं x की जगह पे। मतलब यही नहीं कि सिर्फ +1 और -1 ही पुट कर सकते हैं, +1 और -1 के बीच में आने वाले हर एक नंबर को हम यहाँ x की जगह पुट कर सकते हैं, तभी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करेगा। एंड वंस इट ऑपरेट्स, ये जब भी इस वैल्यू को लेकर कुछ ऑपरेशन करेगा तो ये थीटा की वैल्यू बाहर पॉपअप करके देगा, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो थीटा की वैल्यू हम रेडियंस में कोट करेंगे। तो आपको ये बात हमेशा मालूम होनी चाहिए कि ये x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये x की वैल्यू मैक्सिमम +1 तक हो सकती है, और गिरते गिरते मिनिमम इट कुड बी -1। सो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज +1 एंड -1, द वैल्यू ऑफ x इज। और अगर इन वैल्यूज़ को इक्वेट करा जाए तो जो थीटा का आंसर आ सकता है
the value of theta can be जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो सकती है साइन इनवर्स फंक्शन के लिए, कि अगर आपके पास साइन इनवर्स फंक्शन है और x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है और मिनिमम वैल्यू -π/2 है। इसका एक चार्ट रहता है, जिस चार्ट को देखकर हम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ये एंगल्स की वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ रहती हैं x की, जिनको कि हम इनपुट करते हैं एज ए यूज़र, हम ये x की वैल्यू हमारे क्वेश्चंस के अंदर इनपुट करते हैं, तो इन वैल्यूज़ को कहा जाता है डोमेन। जो हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, जो हम इनपुट देते हैं वो x के टर्म्स में देते हैं और इन x की वैल्यूज़ को कहा जाता है डोमेन। और जो आंसर्स हमें पॉपअप के मिलते जाते हैं, मतलब आपने x की वैल्यू कुछ भी डाली और उस पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करा, तो द वैल्यू विच यू गेट फॉर द थीटा इज नोन एज कोडोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x की आप कोई भी वैल्यू डाल लो +1, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो +1 और -1 के बीच का ही नंबर होना चाहिए और कोई नंबर ये फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एक चार्ट होता है, जो कि चार्ट हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और ये जो वैल्यूज़ निकल कर आती हैं कोडोमेन की, मतलब जो थीटा के आंसर्स, मैंने आपको बताया थीटा के आंसर्स को कोडोमेन कहा जाता है, या कई लोग इसको रेंज भी कहते हैं। तो ये जो थीटा के आंसर्स निकल कर आ रहे हैं π/2 से -π/2 तक, ये जो वैल्यूज़ रहती हैं इनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी कहते हैं। मतलब कई लोग ये वैल्यूज़ को, जो थीटा के आंसर निकल कर आएगा आपके पास में, उस वैल्यू को कई लोग कोडोमेन कहते हैं, कई लोग उसको रेंज भी कहते हैं, और कई लोग उसको पीवी वैल्यू यानी प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये जो थीटा का आंसर है रेडियंस के टर्म्स में जो निकल कर आता है, इट कैन बी कॉल्ड एज कोडोमेन, इट कैन बी कॉल्ड एज रेंज, इट कैन बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मैंने ये एक चार्ट बनाया है यहाँ पे, और ये चार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि ये x में हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो मैंने आपको बताया ये x की वैल्यू -1 से +1 तक रह सकती है, मतलब इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज़ कंसिडर्ड करी जा सकती है। और जब आप इन दोनों के बीच की कोई भी एक वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर x की जगह इन नंबर्स के बीच का कोई भी एक नंबर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये फंक्शन इन आंसर्स के बीच का आंसर ही हमेशा थ्रो आउट करेगा। मतलब ये जो फंक्शन में y का आंसर निकल कर आएगा, थीटा या रेडियन का आंसर निकल कर आएगा, वो वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा ही हर एक फंक्शन के लिए रहता है। आपको ये वैल्यूज़ ध्यान होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन में, कौन से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सी x की वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल रहती हैं, ये याद होना चाहिए, जिसको हम डोमेन कहते हैं कि हर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन क्या है, ये बात याद होनी चाहिए। और उस डोमेन से कौन सा आंसर बाहर निकल सकता है, ये बात भी याद होनी चाहिए। हम कुछ भी थीटा का आंसर लिख दें रेडियंस के टर्म्स में, और वो वैल्यू इस वैल्यू के बीच में लाए अगर नहीं कर रही है, तो वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू या आंसर कंसिडर नहीं होगा। इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो वैल्यू है वो उस वैल्यू के बीच में ही लाई करनी चाहिए। इफ़ वो वैसे लाई नहीं कर पा रही है तो आप उसको उसमें कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं उन वैल्यूज़ को लाई कराने के लिए। आई वुड सजेस्ट आप इस एक टेबल को एक बार ध्यान से देख लीजिए कि ये टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं
और इसको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये वैल्यूज़ विद एक्स की वैल्यूज़ जो मैंने डोमेन में दिखाई हैं और इनके जो को डोमेन के आंसर्स हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के आंसर्स हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। टेबल ध्यान से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। Now please observe this function which I have written on the board. This represents the basic question from the inverse trigonometric part. ये inverse trigonometric part का सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, साइन इन्वर्स फंक्शन है, और आपको बताया गया है कि आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ 1/√2। अब आपको ये बात सबसे पहले चेक कर लेनी चाहिए, या ये बात आपको ध्यान होना चाहिए जो मैंने टेबल बताया था कि साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो x की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूटेड है, यानी कि ये -1 से +1 के बीच की वैल्यू है कि नहीं। तो आपने सबसे पहले देख लिया, चेक कर लिया यार 1/√2 एक ऐसी वैल्यू है जो -1 और +1 के बीच में आती है। फिर आपको ये बात भी ध्यान आनी चाहिए कि साइन इन्वर्स फंक्शन का जो भी आंसर आता था वो -π/2 से +π/2, मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसका जो थीटा का आंसर निकालूंगा तो उसको कैसे निकालूंगा वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इस फंक्शन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, सबसे पहले मेरे को जो भी ऐसा कोई वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है उसको मैं सबसे पहले थीटा के बराबर लिख देता हूँ। मैंने उसको सबसे पहले थीटा के इक्वल में इक्वेट कर दिया। इसको स्टार्ट करने का तरीका, मतलब आपको क्वेश्चन केवल इतना ही आएगा, उसका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपने इक्वल टू थीटा लिख दिया। उसके बाद अब आप ये साइन इन्वर्स फंक्शन को माइग्रेट करके यहाँ से इस तरफ लेकर जाएंगे थीटा के पास, तो इट विल बी लुकिंग लाइक 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 1/√2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और अब आपको ये बात सोचनी है कि साइन थीटा में 1/√2 कब आता है। मतलब अगर मैं रिकॉल करूं, इफ़ आई एम राइट, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि 1/√2 साइन π/4 साइन 45 डिग्री पे बनती है, तो साइन π/4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पे ये जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक दूसरे को नगेट कर देंगे, एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देंगे। तो आपके पास सिर्फ बच जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू π/4। थीटा की वैल्यू π/4 के बराबर आ जाएगी, जो कि आंसर आपने रेडियंस में लिखा है। अब आपको ये बात चेक करनी है कि ये जो आंसर मैंने लिखा है ये सही है कि गलत है। तो आपने रिकॉल करा कि साइन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो थीटा का आंसर आता था, जो उसका कोडोमेन रहता था, वो रहता था -π/2 टू +π/2, मतलब -π/2 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल रहेगी। तो आपने देखा π/4 -π/2 और +π/2 के बीच की एक वैल्यू है, तो ये एक्सेप्टेबल है, तो ये चल जाएगा। अब आपको ये डाउट कई लोगों को आ सकता है, सर -π/2 +π/2 बनता कैसे, क्या है। तो याद रखिए इसको -π/2 कहते हैं, दिस इज -π/2, दिस इज 0, दिस इज π/2। π/4 कहीं यहाँ कहीं लाई करता है, तो ये जो वैल्यू है ये इन वैल्यूज़ के बीच में आ रही है, इसलिए एक्सेप्टेबल है। ये इस रीजन के बीच की कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल थी, तो π/4 एक वैल्यू है तो इस रीजन के बीच में आ रही है, तो एक्सेप्टेबल है। हाँ, अगर आप मेरे को कोई यहाँ की एक वैल्यू बता देते इसका आंसर, तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो इस गिवन रीजन के बियॉन्ड है, उसके आगे चली गई है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए ये जो कोडोमेन की वैल्यू रहती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फाइनल आंसर को कोट करते वक्त। अगर इसमें आपने गलती कर दी तो आपका फाइनल आंसर गलत निकलता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, कोसेक इन्वर्स ऑफ -2। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मैंने यूज़ करा है वो कोसेक है, साइन नहीं यूज़ करा है। और दिक्कत यह है कि यहाँ जो इस बार x की वैल्यू अंदर कोट करी गई है, ये वैल्यू माइनस में दी गई है। तो ऐसी वैल्यूज़ को कैसे हैंडल करना जब आपको अंदर की वैल्यू माइनस, ये वैल्यू एक्सेप्टेबल तो है, क्योंकि अगर आप वो टेबल याद रखो तो कोसेक के अंदर जो वैल्यूज़ हैं
वो 1 से लेके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक रहती थी। वो टेबल आप अगर रेफ़र करो तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्टेबल थी। 2 केस बनाए थे मैंने वहाँ पे, 1 से इन्फिनिटी और एक केस बनाया था माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। तो -2 ये वैल्यू इसके बीच में आती है, तो ये वैल्यू सही है, ये गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है ये वाला। अब लेकिन ये माइनस वैल्यू को कैसे, अब इसका जो आंसर निकालना है वो कैसे निकालना है? तो अब इसका आंसर निकालने का सबसे पहला तरीका वही रहता है कि आपको जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, यू सब्सटीट्यूट दैट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू थीटा। मीन्स ये ऐसा दिखने लगेगा, cosec inverse of -2 is equal to theta. This is will be the first step. इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन यहाँ माइग्रेट करेगा, तो ये बन जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू -2। cosec थीटा इज इक्वल टू -2। ये फंक्शन, इन्वर्स वाला फंक्शन इस तरफ माइग्रेट करके थीटा के पास वापस चला गया और जैसे ही वो थीटा के पास आया वो बन गया cosec थीटा। तो cosec थीटा इज इक्वल टू -2। अब एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, खासकर जब नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं तो। फॉर सपोज अगर आपको कभी भी ऐसा आंसर मिल रहा है साइन इनवर्स ऑफ -x, मतलब साइन इनवर्स फंक्शन में आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको ध्यान रखना है खासकर ऐसे नेगेटिव प्रॉब्लम्स के लिए। सिमिलरली cosec इनवर्स -x is equals to minus cosec inverse x. Similarly, tan inverse of -x is equals to minus tan inverse x. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का उन वैल्यूज़ के लिए जब x की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन था जिसमें मेरे x की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, तो मैंने लिख दिया cosec थीटा इज इक्वल्स टू -2। अब आप ये देखो, माइनस साइन पे अभी आप ध्यान मत लगाओ, आप ये सोचो cosec में 2 कब आता है? π/6 पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। तो आप इसको लिखोगे cosec थीटा इज इक्वल्स टू cosec π/6। cosec थीटा इज इक्वल्स टू, अभी आपने नेगेटिव साइन को भूल गए 2 मिनट के लिए कि भाई नेगेटिव साइन था वहाँ पे, और फिर आपने देखा क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में था तो सही, तो आपको नेगेटिव साइन को कंसिडर तो करना पड़ेगा। तो आप अब क्या करोगे कि ये जो वैल्यू है π/6, इसके आगे नेगेटिव साइन डाल दोगे, तो आपका जो थीटा का आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -π/6। इसमें जो थीटा का आंसर निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू -π/6। लेकिन ये खास उन क्वेश्चंस के लिए है जिसमें आपको नेगेटिव वैल्यू x की जगह सब्सटीट्यूटेड रहती है। ओके, तो मैं इसका एक और एग्जांपल अभी आपके सामने लेता हूँ एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने, लेकिन इसको ध्यान से देखिए कि ये मैंने कैसे करा, और ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज करा है नीचे, और ये वैल्यूज़ हैं जो x की हो सकती हैं मतलब। और फिर इसको करने का तरीका क्या बताया, थीटा लेके जाइए, cosec थीटा -2 के बराबर है। 2 मिनट के लिए माइनस पर से साइन ध्यान हटा लो, और ये सोचो cosec में 2 कब आता है, तो आपने देखा cosec में 2 π/6 पर आता है, तो आपने ये 2 की जगह वहाँ पे cosec π/6 लिख दिया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आपका माइनस का साइन आपने ध्यान हटा लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा, लेकिन ओरिजिनल में तो था ही, तो आपने फिर क्या किया, ये π/6 की जगह -π/6 कर दिया। तो आपको जो थीटा का फाइनल आंसर है वो यहाँ मिलकर आया, दैट इज -π/6।